دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ آج ایک اور ہوا کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، عمر صرف اور صرف 13 سال ہے، اور بدقسمتی سے اس بچی کو زندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ بچی مائنر ہے، زندگی کرنے والا مائنر نہیں ہے۔ یہ ملک ہو کر گجرات کا علاقہ ہے۔ بچی کا چہرہ آپ کی سکرین پر نہیں دکھایا جائے گا۔ بچی کا نام فرضی ہوگا۔ بچی کے کوائف کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بچی کو آنے والی زندگی میں اس اذیت کو اوور کم کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ اندھا، بہرا، گونگا یا کانا نہیں ہو گیا ہوا تو اس کے لیے اس کو اس بچی کی شناخت، اس بچی کے کوائف ضرور پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ اس بچی کو انصاف کی منازل طے کروائی جا سکیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ایک بچی جو مائنر ہے، جس کو اپنی زندگی کی بے تحاشا بہاریں انشاءاللہ دیکھنی ہے، جس کو ایک بہترین، مستحکم، مضبوط خاتون بننا ہے، جس کو شاید اس ملک کے نظام کو چلانا پڑے کل کسی ٹائم پر، اگر اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک احسن اور بہترین بیٹی بنے، ایک احسن بہترین بہن بنے، ایک احسن اور بہترین ماں بنے، لیکن انفارچونیٹلی اس بچی کو اس کے انتہائی بچپن میں سٹینز دیے گئے ہیں، داغدار کیا گیا ہے۔ اور داغدار یہ نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، داغدار وہ بدبخت ہوا ہے جس کا نام عبداللہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا بندہ۔ کیا ناموں سے انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے؟ یہ کہانی کرتوتوں کی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بچی موجود ہے اور میں فرضی طور پر اس بچی کا نام ارشا لیتا ہوں جی۔ اس بچی کا نام آج کے پروگرام کے لیے ارشا ہے۔ ارشا بیٹے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کی شناخت کو چھپایا جا رہا ہے، آپ کی نام کو بدلا جا رہا ہے تاکہ کوئی آنے والی زندگی میں آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہو۔ پتر، کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ آپ جانتی ہیں عبداللہ کو؟ نہیں، عبداللہ کو میں نہیں جانتی۔ ہوا کیا؟ امی نے صبح مجھے صرف لینے بھیجا تھا، تو یہ محلے والی دکان بند تھی، میں آگے چلی گئی تو کھلی ہوئی تھی، تھوڑی آگے تھی وہ دکان، تو وہاں پہ گئی میں، تو صرف لے کے میں باہر نکلی ہوں اور اس لڑکے نے مجھے میرے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور میرا بازو پکڑ کے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے پیچھے گھاس تھی، وہاں پہ اس نے جا کے میرا منہ سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ گھاس تھی پیچھے؟ جی، اس نے میرے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بولا تم کون ہو، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ آگے سے کہتا ہے میں نے تمہارے سے بات کرنی ہے، تم میری بات سنو۔ میں نے بولا مجھے چھوڑو، میں نے شور ڈال دینا، تو وہ اس نے میرے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ادھر جا کے اس لڑکے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے بدنام کیا اس لڑکے نے۔ آگے سے سب کچھ کر کے وہ مجھے دھمکی لگا رہا تھا، کہتا ہے کہ تم نے کچھ بولا گھر میں جا کے، کچھ کسی کو بتایا تو میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہارے گھر میں آ کے ایسے کروں گا ویسے کروں گا، مجھے دھمکیاں لگاتا رہا، میں تمہیں مار دوں گا، تمہاری امی ابو کو مار دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جہاں بھی مجھے ملی، ایسے سارے کرتا رہا، مجھے ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اور میرے ساتھ زیادتی اس لڑکے نے کی ہے۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جی۔ کس سکول میں؟ گورنمنٹ ہائی اسکول۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں؟ جی۔ تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7th کلاس میں؟ جی۔ اللہ تعالیٰ بیٹے آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو 7th کلاس میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ محلے دار ہے، کبھی دیکھا ہو محلے میں آتے جاتے کہ نہیں؟ نہیں، 1-2 دفعہ دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں۔ کہاں پہ دیکھا تھا؟ یہ ایک لڑکے اس کے پاس آتا تھا۔ کس لڑکے کے پاس؟ اس کا نام ہاشم ہے، یہ ہمارے محلے میں ہے۔ وہ تو ہاشم کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ ہمارے محلے دار ہیں، تو اس کو میں دیکھتی رہتی ہوں، ایسی دکان پہ جاتی ہوں تو وہ ایسے گزرتا ہوتا ہے۔ ہاں، ہاشم کی عمر کیا ہے؟ نہیں پتا جی؟ عمر نہیں پتا۔ باجی ایک سیکنڈ ذرا تھوڑی دیر خاموشی رکھیے گا۔ قاسم ہے یا ہاشم ہے آپ کی والدہ کہہ رہی؟ قاسم ہے۔ قاسم ہے یا ہاشم ہے؟ قاسم۔ قاسم،
جی कासिम की उम्र क्या है? वो नहीं मुझे पता। बड़ा है आपसे? जी स्टूडेंट है? वो नहीं पता स्टूडेंट। तो कासिम को आप कैसे जानती हैं? हमारे मोहल्लेदार हैं तो वो आते जाते हैं, उसकी अम्मी रहती है हमारे घर, मेरी उनकी आपी। वालिदा आपके घर में आती है, जी तो उस वजह से आप जानती हैं उसको। जी ये उसके पास आता है अब्दुल्ला, जी उसके पास उसकी रिहाइश कासिम की कितनी दूर है यहाँ से? ये थोड़ी सी दूर है, बस एक गली छोड़। अच्छा, इसका कासिम के पास आना जाना था, इस जी वजह से आप इसको कासिम के हवाले से जानती हैं। जी कभी कोई सलाम दुआ हुई हो, कोई आमना सामना हुआ हो, कोई फोन पे बात हुई हो? नहीं मोबाइल फोन है आपके पास? नहीं है। घर में कितने मोबाइल फोन है? एक अब्बू का है, अम्मी का है और सिस्टर का, ब्रदर का बस। हाँ, तो आपके पास भी होता है फोन? नहीं, मैं अब्बू का देखती हूँ, थोड़ी देर ड्रामा देखती हूँ उसके ऊपर। ड्रामा वगैरह देखने के लिए जी। देती है। तो अब्दुल्ला से या कासिम से कभी फोन पर राब्ता हुआ? नहीं कोई किसी किस्म का नहीं नहीं हुआ? तो अभी आखिरी राब्ता तो हुआ था, जी हुआ था ना बेटे? जी हकीकत बात क्या है वो बताओ बेटे। इसके साथ आपकी कभी फोन पर बात हुई है? जी। उस दिन, उस रात 3 बजे उसने मुझे कॉल की थी मेरे अब्बू के नंबर से। मुझे तंग करता रहा, गालियाँ निकालता रहा, मैंने उसको गालियाँ निकाली हैं पहले, फिर उसने मुझे गालियाँ निकाली हैं। ऐसे उसने मेरे साथ बात की है फ़ोन पे, ऐसे कहता है कि तुम मुझे मिलो, ऐसे करो वैसे कुल करो। कितनी दफा आपकी इसके साथ फोन पर बात हो चुकी है? उस रात को ही सिर्फ हुई थी, उसने काफ़ी दफ़ा माइक की करीब थी, कीजिएगा। काफ़ी दफ़ा उसने बात किस की रात थी। को? उस दिन, जिस दिन ये वाक़या हुआ था, उस रात को उस लड़के ने वाकये कहा। से पहले जी या वाकये के बाद? वाक़ये से पहले। वाकये से पहले रात 3 बजे वो आपके वालिद के नंबर पर कॉल करता है और आप फोन उठाती हैं। जी क्या ऐसा ही हुआ? जी आपने फोन उठाया तो उसने आपके साथ बदतमीजी की। जी वो जानता था कि आप कौन बात कर रही हैं? मुझे नहीं पता कि वो जानता था कि नहीं, लेकिन उसने मुझे बदतमीजी की थी, उसने मेरे साथ। इसको नहीं छेड़े, वो नीचे से आवाज आएगी। अच्छा, बदतमीजी की थी। जी इससे पहले आपकी कितनी दफा इससे बात हुई है, या कहीं आमना सामना कभी हुआ है? जी आमना सामना कभी हुआ जुबान था। साझी हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं था हुआ, लेकिन एक दफ़ा मैंने इसको देखा था हाँ, गली में। हाँ। जी तो कोई बात हुई थी जब आपने देखा था इसको? नहीं, कोई बात नहीं थी। हम्म। अब्बा का फोन जो है अमूमी तौर पर आप अटेंड करती हैं? जी अब्बा का फोन बज रहा हो तो आप उठा लेती हैं? जी अब्बू ने बोला था कि अंकल होते हैं, ये हमारे मामू लोगों की कॉल आती हैं, तो अब्बू कहते हैं उठा लिया करो, पूछ लिया करो कि हाँ। कौन है। रात को 3 बजे आपके वालिद के नंबर पर आपको कॉल करता है, आपकी और उसकी बात कितनी देर हुई? 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, ऐसे ही घंटा? 10 मिनट 5 मिनट इन दो। 10 मिनट में क्या बात हुई आप लोगों की? उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैंने भी उसके साथ फिर बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी की थी? गालियाँ निकालता रहा मुझे मुझे फिर कहता है, गालियाँ निकाल कहता है मुझे मिलो, मैं तुम्हारी गली में आता। मैंने बोला तुम गली में आओ, फिर मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मेरे भाई ने तुम्हें मारना है, तुम यहाँ पे आए तो। इन 10 मिनट में क्या क्या बात हुई और क्या बात हुई थी? वो कहता है कि मुझे मिलो। मैंने बोला मैं क्यों मिलूं, तुम हो कौन? तो कहता है जो लड़का गली में आता था वो मैं, जिसको तुमने 1-2 दफा देखा है। मैंने बोला मैं तुम्हें जानती नहीं, मैं क्यों मिलूं, मैं क्यों तुम्हारे से बात करूं। फिर मैंने को गालियां निकाली थी उसको, उसने मुझे फिर गालियां निकाली थी। आप कहाँ पे सोती हैं? मामा के पास होती हूँ रूम में। मामा आप और कौन कौन होता है? ये सिस्टर बड़ी होती हैं और आप छोटे 3-4 हैं। लोग इकट्ठे सोते हैं। जी रात 3 बजे जब कॉल आई तो अब्बू तो वहां पर आपके नहीं सोते, नहीं आपके बाबा अलहदा सोते हैं, जी यानी आपके बाबा का फोन आपके पास था, जी आपके बाबा का फोन आपके बाबा के पास नहीं था, नहीं ऐसा ही है ना? तो आपके बाबा का फोन आपके पास उस वक्त नहीं होना चाहिए था लेकिन था। जी वो ड्रामा देख रही थी ना रात को, तो फिर वो देखते देखते सो गई थी, इसलिए वो वहाँ और फिर पे। फोन बजा और आपने फोन उठा लिया। पहले मैंने पिक नहीं था किया, काट दिया था, फिर उसने मुझे की, फिर मैंने किया था। आपको नंबर का पता था कि किसका नंबर है? नहीं, मुझे नहीं था पता किसका था।
आपको पता है कि फोन की हिस्ट्री निकल आती है, जी पता चल जाता है कि इस नंबर पर कितनी दफा बात हुई है. गेटिंग माय पॉइंट ना? ये बात समझ रहे हो बच्चे? जी हर चीज फोन में हर चीज पता चल जाती है. बहरहाल अल्लाह आसानी करे. आपकी और इसकी, जब इसने आपको किडनैप किया है, आपके मुताबिक आपको दुकान से किडनैप किया है या रास्ते से किया है? बाहर रास्ते से किया था. किस जगह से एग्जैक्टली? पीछे से पता नहीं कहाँ से निकले, उसने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखा है, हाथ रख के मेरे बाजू पकड़े और मुझे ये घसीटता हुआ गली ले गया. का वाकया है या किसी दुकान के पास का वाकया है? दुकान के पास का वाकया. तो दुकान पर जब एक लड़का आता है और वो एक लड़की के मुंह पर हाथ रखता है, एक बच्ची के मुंह पर हाथ रखता है और उसको किडनैप करने की कोशिश करता है, दाएं बाएं कोई मौजूद नहीं था? नहीं, कोई नहीं था. दुकान वाला था लेकिन वो दुकान के अंदर था. उसने देखा ये सब कुछ? नहीं, उसने नहीं था देखा, वो दुकान के अंदर था. आपने कोई चीख मारी हो, किसी को आवाज लगाई हो? लगाई थी लेकिन किसी ने नहीं था सुना. हाँ? लगाई थी, किसी ने नहीं था सुना. ये लेकर आपको कहाँ गया था अगवा करके? उसके ना घर के पीछे एक घर था, वहां पे. इसका घर और दुकान में कितना फासला था? जहाँ से अगवा किया कितनी दूर लेके गया है आपको ये? थोड़ी दूर था, ज्यादा नहीं था. लाइक एक गली, दो गलियां, चार गलियां? एक गली. एक गली. कितनी देर मुसलसल वो चलता रहा आपको अगवा करके? आधा घंटा तो उसने मुझे वैसे ही रखा है वहां पे, तो फिर उसने मेरे साथ ये वाकया किया था. घर में कोई भी नहीं था जहां पर? वो सुनसान था, घर भी बन रहा था. खाली जेर तामीर घर है, जी. बन रहा. तो वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 3-4 गलियां दूर है. 3-4 गलियां दूर है. तो उस घर का कोई गेट शेट लगा हुआ है कि भी नहीं लगा? नहीं लगा हुआ. वहां पर भी किसी ने, पूरे रास्ते में किसी ने नहीं देखा कि एक शख्स एक बच्ची को जबरदस्ती लेकर जा रहा है और बच्ची उससे बचने की कोशिश कर रही है? तब कोई नहीं था वहां पे. उसने मुझे घास के पीछे से ले गया था. वहां पे ना ये घास वगैरह थी, ऐसे सुनसान था वो रास्ता जहाँ से ले गया था. जब आपको ये अगवा इसने किया तब आपका फोन था? नहीं, फोन नहीं था. नहीं था फोन. अच्छा. वहां पर गए हैं तो आपकी वालिदा ने हमें बताया कि उसने को मारा पीटा भी था आपको, तशद्दुद भी किया था कि नहीं? नहीं. हो? मारा था लेकिन ज्यादा नहीं था मारा. मुंह के ऊपर मारा था हाँ? बस उसने. मुंह के ऊपर मारा था, ज्यादा नहीं था मारा. हाँ. कोई वीडियोस भी बनाई है? जी. उसी ने बनाई है? जी. कॉल भी करता रहे, किसी को वीडियो भी बनाता रहे. कॉल किसको करता रहा? क्या कहता था कॉल पे? नहीं थी, किसी ने पिक की कॉल. कॉल करता था लेकिन जिसको कॉल कर रहा था उसने कॉल पिक नहीं की. पिक नहीं की. अच्छा. जब ये आपको वहां लेकर गया है, घर जेर तामीर है, घर पर दरवाजा नहीं लगा हुआ, पूरी जो इमारत है उसमें दरवाजे नहीं है, नहीं. समझ रहे ना बेटे? तो इसने आपको वहां पर लेकर गया और आपने ना वहां से भागने की कोशिश की, ना आपने शोर मचाने की कोशिश की, ना ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे दाएं बाएं किसी को पता चले कि यहाँ पर हेल्प की जरूरत है. नहीं, मैंने क्यों? शोर मचाने की कोशिश की थी लेकिन उसने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था. कितनी देर उसने मुंह पर हाथ रख के रखा होता? खींच के जब ले गया था तब भी उसने हाथ देखो बेटे, रखा उसने हुआ आपको था. मारा पीटा नहीं है, समझ रहे हो ना बच्चे? नहीं मारा था लेकिन ज्यादा नहीं था मारा. मुंह के ऊपर उसने मारा था मेरे. और आपने फिर कोई शोर नहीं मचाया? मचाया था मैंने शोर, लेकिन उसने मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था. फिर जब वो कॉल्स करता रहा जी. तो उस वक्त तो आपके पास टाइम था कि आप वहां से निकलने की कोशिश करते, अपने आप को संभालने की करते, या क्या वजह क्या थी, ये सब क्यों नहीं किया? जब मैं भागने लगी थी ना तो पीछे से उसने आके मुझे फिर पकड़ लिया था. अच्छा. पास ही खड़े होके को लेकर आया था, दूर नहीं था. फिर उसके बाद उसने आपको खुद ही घर आने दिया या आप वहां से भाग के यहीं घर कैसे आए थे? वो खुद पहले भागा था, फिर मैं वहां से भागी थी. पहले वो भाग गया था, पीछे वाले रास्ते से वो भाग गया था, फिर मैं भाग गया. धमकियां क्या देता है? जी. धमकी क्या देता था? कहता है कि तुमने किसी को घर जाके बताया, मैंने तुम्हें मार देना है, मैंने ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है, मैंने तुम्हारी अम्मी अब्बू को मार देना है, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम मुझे जहां भी मिली. आप हॉस्पिटल गई थी? जी. डॉक्टर्स के रवैये से मुतमईन है? जी. और पुलिस के? जी.
अनफॉर्चुनेट मामला है जी. आई कैन नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस. मैंने बच्ची की शनाख्त को भी इंटेंशनली छुपाया. देखें, बेतहाशा मसाइल ऐसे हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, जिन पर हमें नजर रखनी पड़ेगी. मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है. इस माशरे में दरिंदे फिर रहे हैं, यहां पर इंसान नहीं फिर रहे. और दरिंदों की सूरत हाल ये है कि दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एनीवन, कोई मिल जाए. और रही बात ये कि हमें यहां आकर पता चला है कि मुल्जिमान ये माइनर है बच्ची, ये बात याद रखिएगा. मैंने बड़ी मुश्किल अपने आप को कायल किया, कन्विंस किया कुछ सवालात के लिए, ताकि ये सवालात अपने रियासती महकमों के सामने रखे जा सके. क्योंकि इनकी, वो क्या कहते हैं, मुल्ला दी दौड़ मसीद ताई, इनकी दौड़ तफ्तीशी तक है. तफ्तीशी की मर्जी है वो स्याह करे या सफेद करे. और इतना सफेद किया होता तो मुल्जिमान की जमानतें ना हो रही होती. केस के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए पुलिस ने. मैं आपको फैमिली से भी मिलवाऊंगा, पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगा. मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि मैं उनकी शनाख्त पोशीदा रखना चाहता हूं, लेकिन वो जाती तौर पर ये चाहते हैं कि उनकी शनाख्त पोशीदा ना रखी जाए. बहरहाल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कन्विंस देम. अगर वो कन्विंस हो गए तो इंशाल्लाह उल अजीज अगली ब्रेक में आपको उनके चेहरे पोशीदा नजर आएंगे. और अगर वो कन्विंस ना हो गए तो उनके चेहरे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम अपनी रियासत को बताएं कि हम हैं आपके बच्चे, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें आपकी मदद की जरूरत है. शी इज अ डॉटर. हो सकता है उसने कोई कोताही की हो सकता है उसने कोई खामी की हो, बट एट द एंड शी इज माइनर, और मुल्जिम माइनर नहीं है, दाना बीना अक्लो शऊर वाला है. अनफॉर्चुनेटली